I'm Vishwajit, General Secretary, All Pakistan Students Union. So, as you all know, APSU works with the motto of learn and serve. Here we work for student empowerment, जहाँ पे हमारे पास वेलफेयर एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्टूडेंट empowerment की एक्टिविटी होती हैं और आज हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है इस वेबिनार का इट्स ऑल अबाउट द ग्लोबल अंडरग्रेजुएट exchange program in Pakistan, which provides emerging youth leaders from diverse communities across Pakistan with the opportunity to attend American universities and colleges for non-degree academic studies. During a semester of undergraduate classes and community engagement, participants होते हैं, they strengthen their leadership, academic and career preparedness skills while building relationship with Americans and uh, participants engaged themselves to tackling pressing challenges in their communities and fostering greater understanding between the people of US and Pakistan. So इसी के लिए for that we have today a session and we have two speakers जो हमें आज guide करेंगे. Uh, Firstly, we have Hera Anwar. She's from Ugrad Spring 2020, Khyber Medical University, Peshawar, and in America, she is in University of Northern Iowa, and she's a student of final year DPT. And as well as second हमारे पास एक और speaker है. She is Rabia Anwar and she is currently a public AD major enrolled in GPP department Namal, and she have been to Global Ugrad Exchange Program as a cultural ambassador of Pakistan. In spring batch 2022, she was placed at a University of Northern Iowa, and owning to a small Instagram account, she inspires students around her and heading a community service for at least for last 2 years against child abuse, name making, minor, major, and recently got awarded with the title of Young Emerging Leader by the US Embassy Pakistan. So, so let's start the session and on to you guys. Thank you. Assalamu alaikum everyone, Rabia here. Thank you, Mavish, for this kind intro and for inviting us. First of all, I want to correct you a bit. It's not Iowa, actually, it's Northern Iowa. Even when I got admitted in UNI, University of Northern Iowa, I was reading it as Iowa क्योंकि वो I और L की वजह से confusion हो जाती है. But guys, it's Northern Iowa. So moving on, first of all, I want to clear one more thing that me and Hira were lucky enough to be placed together in UNI for the last semester. And because we have same surname, so people assume us as sisters. बहुत से लोगों को लगता था कि शायद हम बहनें हैं and even we are twins, but that's not the truth. We just it was just a coincidence that we have same surnames और हमें placement भी हमारी एक साथ ही हुई थी. I was when I shared the poster of APSU that we had a session. So APSU से काफी मुझे followers के जो APSU के members हैं उनके messages आ रहे थे कि are you sisters or what? So we are not sisters. Okay, so coming towards the UGrad exchange program, um, it's basically one semester exchange program. मैं देख रही थी especially because I am an AP US SU member too. तो मैं देख रही थी कि आप लोग जब पोस्टर शेयर कर रहे थे तो वहाँ पे साथ लिखा आ रहा था कि it's a fully funded program and funded by Pakistan government. So no, that's not true. Actually, it's not funded by Pakistan government. It is directly funded by the US government. Fully sponsored by US government. वहाँ पे एक organization है named as IREX, IREX. They are actually are the sponsoring body और वो इस पूरे program को सब students को in Pakistan fund करते हैं. Pakistan has just a role that they send their students. Otherwise, in selection criteria, selection thing, interviews or anything, like Pakistan government has nothing to do with that. So moving towards with the application and like eligibility criteria. So you for UGrad you must be enrolled in a Pakistani
university should be a Pakistani university student. अगर आपकी डिग्री 4 साल की है, तो you cannot apply in your first and last year. You're only eligible अगर आप अपने second year में हैं और third year में हैं. If you're enrolled in your 4-year degree program. और जिस तरह कुछ डिग्रीज 5 ईयर प्रोग्राम्स की होती हैं, फॉर एग्जांपल एमबीबीएस और डीबीटी और एलएलबी, तो उसमें यू आर एलिजिबल इफ यू आर enrolled in your second, third and fourth year. अगेन आप अपने फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में अप्लाई नहीं कर सकते. अदर देन दैट आप जिस भी सेमेस्टर में यू आर एलिजिबल, बट यू मस्ट बी अंडर 25 एज. सिर्फ यही 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर एनरोल अप्लाइंग. इसके अलावा कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चीज नहीं आती. Secondly, the application process is very straight away simple. For selection, दो ही main procedures हैं. First of all, you have to fill out the application, and then after that, if you get shortlisted, then you get the interview call. And if you clear your interview as well, then उसके बाद आप select होते हैं फॉर फाइनल, मतलब जाने के लिए. उसमें भी फिर डिवीजन है. देयर आर सम कुछ लोग हैं वो एज अ प्रिंसिपल कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, कुछ हैं वो एज एन अल्टरनेट कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं. इसमें अब एक्चुअली डिफरेंस ये होता है कि इफ यू आर सिलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल कैंडिडेट, तो आपने जाना ही जाना होता है अनलेस यू हैव सम वीजा प्रॉब्लम और योर पर्सनल इशू. अगर आप खुद अपने किसी इशू की वजह से विड्रॉ कर देते हैं प्रोग्राम से. अदरवाइज प्रिंसिपल कैंडिडेट्स का कंफर्म होता है कि दे आर गोइंग. एंड देन देयर कम द अल्टरनेट कैंडिडेट्स. उनका ये होता है कि इफ एनी प्रिंसिपल कैंडिडेट जो किसी इशू की वजह से नहीं जा रहा, तो उसकी जगह दे सेंड दी अल्टरनेट कैंडिडेट. या फिर प्रिंसिपल कैंडिडेट्स के बाद बजट बच रहा है, तो उसके बाद दे सेंड दी अल्टरनेट कैंडिडेट एज वेल. लेकिन मोस्टली 80% चांस होता है कि अल्टरनेट कैंडिडेट्स भी चले जाते हैं. जब हमारा बैच गया था, आई थिंक ओनली 2 or 3 अल्टरनेट कैंडिडेट्स थे जो नहीं जा सके थे. अदरवाइज दे ऑल्सो गो. ओके, सो आजकल क्योंकि एप्लीकेशंस खुली हुई है, तो आई थिंक वी शुड डिस्कस दी एप्लीकेशन की एप्लीकेशन फिल किस तरह करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. इसके अलावा आई वांट टू क्लियर सम मिथ्स रिगार्डिंग यूग्रेड, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए एंड डिफरेंट थिंग्स. ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको. यू डोंट नीड एनी बैंक स्टेटमेंट या फिर लाइक इट्स नथिंग. एप्लीकेशन प्रोसेस में जो चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं, एप्लीकेशन में जो रिक्वायर्ड है, जो वेबसाइट पे मेंशन है, जस्ट फोकस ऑन दैट. सिर्फ वही चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उसी हिसाब से एप्लीकेशन फिल आउट करनी होती है. So moving towards application process actually is really simple and straightforward. फिर भी मैंने application guide बना दी थी कि how to fill the application form. तो इसमें सारे step by step procedure दिया हुआ है with all the questions. I'm pasting the link to the guide in here in the messages, and I request APSU team कि after session आप लोग ये link document link है ये सबके साथ share कर दें, whether on your social media or whatever. Again, student can fill the application form Okay. correctly. Okay. 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 So moving towards application में सबसे ज़्यादा 2-3 चीज़ों में confusion होती है. The most important thing in application is SOP, which is known as statement of purpose or personal statement. Basically, at this stage, SOP or statement of purpose is the most important thing. इसी की basis पे आपकी selection होती है. I would like to add one thing here about GPA. Actually, GPA does not matter in UGrad. Does not matter कि आपका 2 GPA है, 4 GPA है, 1.5 है. You are eligible. आप अप्लाई कर सकते हैं. तो अक्सर लोग जीपीए की बहुत टेंशन लेते हैं. थॉट कि शायद सिलेक्शन भी जीपीए के हिसाब से होती है. इट्स नॉट ट्रू. जीपीए डज नॉट मैटर इन यूग्रेड. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जितने लोग भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, डू अप्लाई, बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी लक कब चल रही है, आपका मेहनत आपकी कब काम आ जाए. सो जस्ट अप्लाई हुए, राइट. उसके बाद एसओपी के बारे में हम बात कर रहे थे. SOP is basically a 250 words का एक ऐसे होता है जो आपने लिखना होता है. 250 is the word limit for that. और उसमें भी they have given 4 questions for SOP writing. जिसमें you have to, in first part you have to describe your interests and personality. In second part you have to describe your academic objectives. In third part you have to state your interests,
No, sorry, third part you have to state your goals related to your field of study, and in fourth part you have to explain that how will you pursue those goals in USA and what will you do when you'll come back. तो ये चार चीजें हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन you have to answer these four questions so effectively कि अगर कोई इसको पढ़े तो it's worth reading their time. इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि दे राइट देयर नेम इन देयर एसओपी, देयर एज और करंटली वेयर दे आर स्टडिंग, क्या पढ़ रहे हैं वो, उनकी डिग्री कौन सी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये सब चीजें अपनी एसओपी में लिखते हैं. What I recommend everyone is कि do not write these unnecessary things in your SOP. Basically क्योंकि आपके पास already 250 words हैं और उस 250 वर्ड्स में उन चार क्वेश्चंस का आंसर प्रिसाइसली देना और टू द पॉइंट देना इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू. So do not add any unnecessary information such as your name, your age, your city where you belong, आप कौन सी डिग्री में एनरोल्ड हैं, कौन से, हाँ आप अपनी डिग्री का जरूर बताएं कि हम इस डिग्री में एनरोल हैं, बट गिव अ रीजन फॉर दैट कि आप इस डिग्री में क्यों एनरोल हैं, ताकि आपकी एसओपी साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो. जस्ट स्टेटिंग दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और दैट यूनिवर्सिटी, इट वोंट गिव यू एनी बेनिफिट. तो वो जो चार क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बहुत इफेक्टिवली देने होते हैं. उसके लिए मैंने अगेन एक आर्टिकल लिखा था एसओपी राइटिंग. आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक फॉर दैट टू हियर. उसमें सारी डिटेल्स हैं कि आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसको कैसे मजीद शॉर्ट कर सकते हैं और कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं. व्हाट आई डिड वाज कि जब मैंने अपनी एसओपी लिखी थी, सो आई स्टार्टेड द डे जिस दिन एप्लीकेशन ओपन हुई थी, and I ended it on the last day. I submitted my application at the very last moment, or almost for 1 month. I was rewriting it, rephrasing it, making changes, and that is what I recommend everyone. क्योंकि I cannot believe कि आप एक ही दफा में एक बहुत अच्छी एसओपी लिख लेंगे. तो उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस ये हैं कि फर्स्ट तो जस्ट टेक द वर्ड लिमिट आउट ऑफ योर माइंड, क्योंकि जब आप लिखने बैठते हैं अपने बारे में अकॉर्डिंग टू दोज क्वेश्चंस, बिकॉज यू हैव टू डिस्क्राइब सो मेनी थिंग्स, तो आप भूल मतलब बहुत कुछ आप लिखते हो, तो 250 is nothing in front of that. When I made my first draft, I just kept the word limit out of my mind and I wrote almost 1250 words, 1250 words for my first draft. उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट उसमें से अननेसेसरी अनइम्पोर्टेंट चीजें जो कि मुझे लगता था कि अच्छा ये भी रिमूव हो सकता है या ये सेंटेंसेस कंबाइन हो सकते हैं तो वर्ड्स कम हो सकते हैं, इस तरह से फिर मैंने उसको रीफ्रेज करना शुरू किया. देन इसके बाद यू कैन कम अप विद गुड थिंग्स. अच्छा इसमें जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट से एकेडमिक ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड पार्ट इज योर गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी. इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन आवर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव एंड आवर गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी, क्योंकि ये बहुत सिमिलर चीजें हैं. तो जब मैं अपना एसओपी लिख रही थी, व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपने एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स को एज अ स्टूडेंट डिस्क्राइब किया था कि व्हाट आई वांट टू डू इन दीज 4 इयर्स, कि जो मेरे बैचलर्स के 4 इयर्स हैं एज अ स्टूडेंट मैं क्या करना चाहती हूँ. जैसे महविश ने मेरे इंटरव्यू में बताया था कि आई एम वर्किंग अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज, तो एट दैट टाइम माय ऑर्गेनाइजेशन वाज आई थिंक जस्ट 6 or 7 months ओल्ड. So I related my organization with my field of study. फिर मैंने उसी से related अपना goal लिखा था कि what I want to do with my organization using my field of study in these 4 years. So that was my academic objective basically. And then I described my goals related to my field of study as a professional. That after completing my bachelor's, after these 4 years, what I plan to do. मेरे पास आगे क्या plan है अपनी field को लेके. तो आप लोग भी इसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. यू कैन राइट अबाउट योर वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस एज वेल, योर लीडरशिप पोजीशंस यू हैव हैड इन past 4 5 years or recent. Add whatever you think is worthy of reading someone else's time and which makes you stand out of the crowd. क्या चीज है जो आपको सबसे डिफरेंट करके, because देखिए it's a fully funded program and they put huge amount on every single student. आपकी airfare, accommodation, food, each and everything. Even जब हम वहाँ जाते हैं हम पैसे सेव करके वापस भी ले आते हैं. So like they are putting a lot on one student. तो उनको भी in return ऐसा कुछ चाहिए कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसमें कोई ना कोई चीज लाजमी हो, which he or she can polish or he or she can do for her country वापस आके. तो you need to figure out that thing कि वो क्या चीज है जो आप में यूनिक है या जो आप में डिफरेंट है, जो आपको इस प्रोग्राम के लिए एक अच्छा कैंडिडेट बना रही है एंड डिजर्विंग कैंडिडेट बना रही है कि आपको सिलेक्ट किया जाए. इसमें अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं क्योंकि उन्होंने एसओपी के क्वेश्चन के साथ लिखा होता है कि ऐड योर लीडरशिप पोजीशंस, योर वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस, ब्ला ब्ला.
तो अक्सर स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि एसओपी में दे जस्ट स्ट्रेट अवे राइट कि आई एम वॉलंटियरिंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम वॉलंटियरिंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के नाम की लिस्ट एसओपी में लिख देते हैं। दैट इज टोटली नॉट रिकमेंडिंग, क्योंकि आपके पास आपकी एप्लीकेशन में एक पूरा सेक्शन है नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज जहाँ पे आपने ऐड करनी है। यू कैन ऐड अप टू 10 एक्टिविटीज, ठीक है। तो आप अपनी ये सब चीजें वहां पे ऐड करें, दिल नो कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पोजीशन पे ये काम कर रहे हैं। बट यू कैन डू इन योर एसओपी कि आप उन पोजीशंस का इम्पैक्ट लिखें कि आपने कैसे वो पोजीशन गेन की। आपने पोजीशन से, अगर आप किसी लीडरशिप पोजीशन में थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इफ यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बाय योरसेल्फ, तो आपका बैकएंड पे क्या आइडिया था, व्हाई यू स्टार्टेड, व्हाट हैव यू लर्न टिल नाउ, आप सोसाइटी में किस तरह पे बैक कर रहे हो। तो आप इस तरह डिफरेंट चीजें लिंक करें। एंड इफ यू कैन लिंक दैट विद योर करंट फील्ड ऑफ स्टडी, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है, ही एंड शी वॉलंटियर with free medical camps, और वो मेडिकल स्टूडेंट भी है, दे कैन इजीली रिलेट देयर वॉलंटियर एक्सपीरियंस विद देयर करंट फील्ड ऑफ स्टडी कि हम इसलिए ये काम करते हैं। फिर आप अपना फ्यूचर प्लान लिखिए कि हाउ डू यू सी योर सेल्फ, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, आपने, आप जब वहां जाओगे तो हाउ डू यू प्लान टू लर्न थिंग्स, आप किस तरह से, आपकी क्या विजन है कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट विल यू डू व्हेन यू कम बैक। अक्सर लोग सिर्फ रेसिपी में लिख देते हैं लास्ट पैराग्राफ में कि वी वांट टू विजिट यूएसए बिकॉज वी वांट टू see the cultural differences. Of course, it is a cultural exchange program. ये एक नॉन एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम है एंड आपको वहां जाके पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई से ज्यादा बहुत कुछ करना पड़ता है। यू हैव टू गिव कल्चरल presentations, you have to perform different tasks, you go on a cultural passport, तो आपको अपने cultural passport के 6 different tasks होते हैं, वो fulfill करने होते हैं। आपको आपकी organization different task देती है, आपने वो करना होता है। इवन यू हैव, जब आप वहां जाते हो तो आपने वहां जाके भी मिनिमम 20 आवर्स का वॉलंटियर एक्सपीरियंस करना ही करना होता है। सो लाइक यू हैव टू डू अ लॉट। उसके अलावा द प्लस पॉइंट इज दैट यू ट्रेवल अ लॉट, जितना आप ट्रेवल कर सकते हैं आप वो भी करते हो। सो लाइक यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स। तो ये सब मल्टीपल काम करने के लिए भी यू नीड सम लीडरशिप स्किल्स। तो इट्स गुड कि अगर आप ये सब चीजें भी अपनी एसवी में मेंशन करें कि वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, और हम ये कर रहे हैं और हम ये इम्पैक्ट ला रहे हैं। So that's how you can write a good SOP. I'm also sharing the link to the article, how to write an effective SOP, so that you guys can give it a read. I've shared the link, Mary. ओके, ये शेयर हो जाएगा फिर सबसे, ठीक है? Okay. So moving on, my experiences के मैंने वहाँ पे क्या किया, बेसिकली मैं पहले बता देती हूँ। When I applied for the spring, no, I applied for the 2022 year. होता इस तरह है कि साल में एक दफा एप्लीकेशंस ओपन होती हैं, देन स्टूडेंट्स अप्लाई, और मोस्टली दे सिलेक्ट यूएससीएफपी, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान, यहाँ पे यूग्रेड को एडमिनिस्टर करता है। तो व्हाट दे डू इज कि दे सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर 2 सेमेस्टर्स, लाइक वो साल में एक दफा एप्लीकेशंस ओपन करते हैं और फिर 2 सेमेस्टर्स के लिए दे सिलेक्ट देयर स्टूडेंट्स फॉर स्प्रिंग बैच एंड फॉर फॉल बैच। बट व्हेन आई अप्लाइड, सो एप्लीकेशन उस टाइम टर्न आउट इतना ज्यादा था, 16,000 people just applied. उसमें फिर they selected students, 250 students, or I think 256 students for 3 batches. 2022 के लिए उन्होंने 2 batches के लिए बच्चे सिलेक्ट किए, और फिर उन्होंने स्प्रिंग 2023 के लिए भी बच्चे सिलेक्ट कर लिए थे। और अब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के बाद एप्लीकेशन आई है। तो एक तो ये चीज कि वी डोंट नो कि नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन 1 साल बाद आएंगी या 1.5 साल बाद आएंगी, सो इफ यू विल बी एलिजिबल और नॉट। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जितने भी लोग हैं एलिजिबल हैं, डू अप्लाई, डू नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम, बिकॉज यू रियली डोंट नो कि एप्लीकेशन कब आएंगी। तो मूविंग ऑन, हमारी दफा पे उन्होंने 3 बैचेस के बच्चे सिलेक्ट किए, और अभी जो बैच जनवरी में जाना है स्प्रिंग 2023, दैट बैच इज ऑल्सो सिलेक्टेड। तो अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली यू आर अप्लाइंग फॉर द बैच ऑफ अगस्त 2023। अब जो बैच सिलेक्ट होगा वो अगस्त 2023 में जाएगा। तो I was telling about my times when I applied, so there were 16,000 applications, और उसमें से 256 टोटल सिलेक्ट हुए थे, और 138 कैंडिडेट्स हमारे बैच में स्प्रिंग 2022 में यूएस में थे, और 35 डिफरेंट स्टेट्स में we were divided, and almost 2 people are placed in one university.
मूविंग ऑन कि मैंने वहाँ पे क्या-क्या एक्सपीरियंसेस किया, एज़ आई हैव टोल्ड कि स्पॉन्सर्ड ऑर्गनाइजेशंस होती हैं, आपका कल्चरल पासपोर्ट होता है, यू हैव अ लॉट टू डू रादर देन स्टडीज़, रादर देन ओनली doing स्टडीज़। सो बेसिकली आई डिड 42 आवर्स ऑफ टोटल ऑफ कम्युनिटी सर्विस, जिसमें मैंने डिफरेंट काम किए थे। आई पार्टिसिपेटेड विद स्पेशल एजुकेशन के कुछ बच्चे थे, उनके साथ थोड़ा वॉलंटियर वर्क था, डिफरेंट और इस तरह के कुछ काम थे। देन बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, यूग्रेड प्रोग्राम, जब आप किसी भी यूएस यूनिवर्सिटी में जाते हो, यू हैव टू जॉइन देयर एनी स्टूडेंट क्लब। यूएस यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स क्लब्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो बहुत इफेक्टिवली काम भी करते हैं। So I have joined one of their club, which was connecting alumni to students, and I have learned a lot when I was working with them. Then I chaired a two-day MUN conference, which was Iowa High School Model United Nations. जैसे हमारे यहाँ MUNs होते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी था, but it was a very different experience for me. क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब पाकिस्तान में एमयूएन हो रहा होता है तो इट्स लाइक अ ह्यूज थिंग, उसके लिए 2-3 महीने से पहले से प्रिपरेशंस होती हैं, टीम बनती है, इवेंट के एंड पे 3 डे इवेंट अलग से होता है, डीजे नाइट, लंच, डिनर, ईटीसी ब्ला ब्ला। बट वहाँ पर व्हाट आई नोटिस्ड वाज कि दे वर फोकस्ड ऑन द मेन थिंग, दे वर फोकस्ड मेनली ऑन द कॉन्फ्रेंस। हम लोग जो थे हम चेयर कर रहे थे कॉन्फ्रेंस और हम ही खुद जाके हॉल में झंडे भी लगा रहे थे फॉर द कॉन्फ्रेंस। इट्स लाइक दे पुट मोर फोकस ऑन व्हाट्स मोर प्रोडक्टिव। तो वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस चेयर करना, लीड करना, इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड इट वाज लाइक वेरी यूनिक फॉर मी। उसके अलावा आई डिड इंटर्नशिप देयर आल्सो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, बिकॉज़ आप लोग एज़ स्टूडेंट्स जाते हो, स्टडी वीज़ा पे जाते हो, यू डोंट गो ऑन वर्क वीज़ा। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें वहाँ पे जाके जॉब करना अलाउ होता है या नहीं? सो नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू डू जॉब देयर। एक तो रीज़न ये है कि आपका स्टूडेंट वीज़ा है, तो स्टूडेंट वीज़ा पे यू कैन नॉट वर्क। सेकंडली, आप एज़ अ स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट जा रहे हो। यूएस में ऑन कैंपस जॉब्स का बहुत ज़्यादा है वहाँ पे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंपस में ही डिफरेंट जॉब्स कर रहे होते हैं। बट अगर आप एज़ अ यूग्रेडिया जाते हो, यू आर नॉट इवन अलाउड टू डू ऑन कैंपस जॉब। द रीज़न इज़ कि आप एक फुली फंडेड स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट हैं, सो यू डोंट नीड टू डू द जॉब। एंड आई थिंक टाइम मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी का ये कंसर्न है कि हम वहाँ जाके जॉब करेंगे, तो इट्स नॉट द थिंग। बट येस, यू कैन डू इंटर्नशिप्स। फॉर दैट यू आल्सो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम योर एडवाइज़र्स, जो भी आपके कंसर्न एडवाइज़र्स होते हैं। So yes, I did internship in Fort Penn, Iowa. It was very different from my field. It was just library का एक part था, वहाँ पे we have to scan photos and different things like that. तो मैं अभी यहाँ पे भी ये भी कहूँगी कि आप में से जो भी सिलेक्ट होगा, just don't go there और सिर्फ इस एम से ना जाएं कि we will travel and we will just study. स्टडी आप लोग पाकिस्तान में भी कर लेंगे। जब आप वहाँ जा रहे हैं तो explore as much as you can. Become part of different organizations there, different student clubs, जितनी भी आप different opportunities avail कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, do that, क्योंकि it will give you more experience rather than just sitting in class and studying the books. Next, I volunteered with Special Olympics Iowa. Then I also worked as an international student blogger for the Office of International Admissions at UNI. That's how वहाँ पे लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली अगर आप एज़ अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट वहाँ पे गए हुए हैं, सो दे लुक आउट कि आपके पास क्या एबिलिटीज़ हैं और आप भी उनको किस तरह हेल्प आउट कर सकते हो। सो मेरी जो वहाँ पे एडवाइज़र थी, शी लुक्ड माय इंस्टाग्राम एंड शी लुक्ड माय राइटिंग एक्सप्रेशन एंड शी हर सक ऑफर्ड मी कि आप हमारे लिए ब्लॉग्स लिखो, व्हिच वाज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मी कि मैं एज़ अ स्टूडेंट गई हूँ एंड आई एम राइटिंग ब्लॉग्स फॉर देम। सो मैंने उस 4 महीने के अरसे में उनके लिए 4-5 ब्लॉग्स लिखे। आई वाज़ शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद देम विद सम यूनिक मैनर, उसमें अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऐड करके कि ये चीज़ इस तरह है, पाकिस्तान में इस तरह है, कंपैरिज़न करके पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे के आई रोट ब्लॉग्स फॉर देम, व्हिच वाज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में आई वाज़ जस्ट डूइंग इट ऑन माय इंस्टाग्राम, बट उन्होंने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं उनके लिए भी ब्लॉग्स लिखूँ। Then we gave a country presentation there, which I think country presentations are the most uh, इम्पोर्टेंट थिंग जो आप वहाँ पे एज़ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट जाते हो, तो आपको बहुत ये चीज़ हिट करती है पॉज़िटिवली कि आप अपनी कंट्री को प्रेज़ेंट करें। यू हैव द चांस कि आप इतने सारे लोगों के सामने, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैड 40 पीपल इन फ्रंट ऑफ अस व्हेन वी वर गिविंग आवर कंट्री प्रेज़ेंटेशन। सो वी हैड अ चांस कि वहाँ पे लोगों का पाकिस्तान के बारे में जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव रहा है, स्पेशली अगेंस्ट टेररिज़्म, तो हमने चेंज किया। वी टॉक्ड अबाउट the beauty of our country, the northern areas, food, culture, multilingual है हमारा मुल्क। टेररिज्म का हम शिकार हुए, हमने टेररिज्म किया नहीं है, मतलब यू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन। आप लोग, आपके पास बहुत ही अच्छा चांस होता है कि आप अपनी कंट्री का
बहुत सॉफ्ट इमेज और बहुत अच्छा इमेज उन्हें दिखाते हो कि नहीं, पाकिस्तान इज ऑल्सो लाइक दैट। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उस टाइम ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि यू कन्वे योर मैसेज। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अगर आप एक पाकिस्तानी कल्चर एम्बेसडर जा रहे हो, सो यू शुड डू ऑल दिस। इसके अलावा लीस्ट एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी हैव ट्रेवल्ड अ लॉट। सो मैंने और हिरा ने एक साथ बहुत ट्रेवल किया। वी हैव विजिटेड 6 states and 9 different cities, although Hira has traveled a bit more than me. She also went to New York and I didn't. So I have traveled 9 cities और Hira has traveled I think 10 cities. बात करने का मकसद ये है कि इवन जब आप ट्रेवल भी कर रहे होते हैं, यू आर लर्निंग। आप स्टिल उस टाइम लर्निंग फेज में होते हैं, क्योंकि अ, यहाँ पे रह के वी नो कि एज अ स्टूडेंट्स एज टीनेजर्स हमें कितनी कम इंडिपेंडेंसी दी जाती है। तो जब आप यूएस में जाते हो एज अ कल्चरल एक्सचेंज स्टूडेंट, आप अपने सारे काम खुद कर रहे होते हो। योर लॉन्ड्री, योर फूड, यहाँ पे तो आपके पास घर वाले होते हैं, बट यू आर डूइंग एवरीथिंग देयर ऑन योर सेल्फ। कपड़े धोने से लेके अपनी क्लासेस मैनेज करने तक। इवन हम जब वहां पे थे तो वहां पे रमजान भी आया था, तो पहले ही वहाँ पे हमारे साथ मतलब टाइमिंग क्लैश था, खाने-पीने का क्लैश था, हलाल फूड वाज़ नॉट अवेलेबल, देन इट्स रमज़ान, तो नो सहरी अवेलेबल, नो इफ्तारी अवेलेबल, सो डूइंग एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ। फिर सारे टास्क साथ-साथ मैनेज करना, अपनी हेल्थ मैनेज करना। अक्सर स्टूडेंट्स वहाँ जाके थोड़ा डिप्रेस भी हो जाते हैं क्योंकि एकदम बहुत बर्डनाइज़ हो जाते हैं। देन ऑल्सो यू हैव टू ट्रैवल, तो यू आर डूइंग अ लॉट। लाइक आपने वहां पे जाके खुद अपनी फ्लाइट्स बुक करनी है डिफरेंट, अपने लिए होटल्स बुक करने हैं, या टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने एडवाइजर्स को साथ साथ आपने कैचअप रखना है कि वी आर डूइंग दिस एंड दैट। इवन जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, व्हेन यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट सिटीज, तो यू यूज गूगल मैप्स, तो अक्सर आप गुम जाते हैं, नेविगेशन की समझ नहीं आती। बहुत सारी चीजें होती हैं। एक ग्रुप में अगर आप ट्रैवल करो तो कोई कोई काम कर रहा होता है, कोई कोई काम कर रहा होता है, बहुत सारे मिसहैप्स हो जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट फन एंड गेम्स। वो यहीं से बैठ के लगता है कि अगर आप वहां पे ट्रैवल कर रहे हो तो बस आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हो, इस तरह नहीं होता। यू आर डीलिंग सो मच एट द सेम टाइम, लेकिन उससे आप इतना कुछ सीख रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई वाज ट्रैवलिंग तो मेरे साथ स्टूडेंट्स थे जो अपने लैपटॉप साथ लेके जाते थे, एयरपोर्ट पे बैठ के असाइनमेंट्स भी हो रही होती थी, एयरपोर्ट पे रात भी रहते थे। सो लाइक यू लर्न कि हाउ टू मैनेज, या आपने मैनेज कैसे करना है, और इन्हीं चीजों से आप ही अपना लीडरशिप बिल्ड करते हो। लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता कि आप बस वहां पे जा रहे हो तो आप कोई बहुत बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन लीड करोगे तब आप अपनी लीडरशिप स्किल बिल्ड करोगे। जो एक अच्छा लीडर होता है, या लीडर की जो क्वालिटीज होती हैं, वो यही सब होता है। टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन करना, नेटवर्किंग करना, अपना सर्कल बड़ा करना, अपने कॉज को स्प्रेड करना। सो दैट्स आप ये सब वहाँ पे कर रहे होते हैं। इवन दो यू आर डूइंग योर थिंग्स, अगर आप फ्लाइट बुक कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, अगर आपने क्लास के लिए जाना है तो अपने लिए जाना है, लेकिन आप इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज कर रहे हो। सो उन सब चीजों से ही आप टाइम मैनेजमेंट हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी हो रही है, तो आप वही सब चीजें लर्न कर रहे होती है बेसिकली, जो एक लीडर की क्वालिटीज होती हैं। और यूग्रेड का पर्पस ही ये है टू बिल्ड लीडर्स। यहाँ से वो लीडर्स को ही लेके जाते हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कम्युनिटी में कर रहे हैं, या अगर नहीं कर रहे तो एटलीस्ट दे हैव सम प्लान, और वो वहां जाके उनकी इन्हीं स्किल्स को पॉलिश करते हैं। और जब आप वापस आते हो तो यू इम्प्लीमेंट दो स्किल्स। So I think that's all from my side regarding general information about UGrad, eligibility criteria, and general experience. Assalamualaikum. Okay, I am Mira Anwar. Rabia already told about me. So हम दोनों साथ थे. We traveled. हम लोग यहाँ से साथ गए. हम लोग वहाँ पर साथ थे. So Rabia told everything about the U grade eligibility criteria and SOP and everything. I'm going to add some things regarding U grade. सो फर्स्ट थिंग आई एम गेटिंग द क्वेश्चंस के हम लोग बहुत गरीब हैं, या हम लोग मिडिल क्लास से हैं, या हम विलेज साइड से हैं, या हम सिटी साइड से हैं, तो कैन वी अप्लाई? सो यू कैन अप्लाई. आप कहीं से भी हैं. आप अगर पाकिस्तानी नेशनैलिटी में हैं, यू हैव द नेशनैलिटी ऑफ पाकिस्तान, आप CNIC में पाकिस्तान में हैं, तो यू कैन अप्लाई. बेशक आप कहीं कहीं छोटे से गांव से हैं, या आप कहीं से भी सिटी से हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो. यू आर एलिजिबल. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन आई एम गेटिंग दैट कि हमारी इंग्लिश अगर ठीक नहीं है, ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है. यू आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस. आपने जो है वो 14 ईयर या
12 ईयर तक आपने जो पढ़ा वो आपने कहीं ना कहीं तो इंग्लिश में पढ़ा ही है ना। तो आप इट्स नॉट अ बिग डील कि आपकी इंग्लिश जैसी भी है यू कैन अप्लाई। आप लिख सकते हो, आप इंग्लिश में बोल सकते हो। इट्स नॉट बिग डील कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो। हमारे साथ जितने भी जाते हैं दे आर नॉट परफेक्ट कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश हो, या हम लोग सब बहुत अच्छी स्कूलिंग्स में नहीं होते। वी ऑल आर द फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो, ठीक है। आप इंग्लिश बोल सकते हो थोड़ी बहुत, आप इंग्लिश समझ सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड थिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं वो क्वेश्चन सिर्फ यही करते हैं कि व्हाट इज़ योर ग्रेड। देखिए, अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स। आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, आप देखो कि उनका उनका मकसद क्या है आपको एज अ स्टूडेंट या आपको वहाँ पे लेके जाने का, ठीक है। आपको ये देखना होता है, ये देखना लाजमी, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी जाते हो तो पहले उसका बैकग्राउंड चेक करो कि आप अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो गो आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ, उनकी सारी चीज़ें देखें। फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो क्या कहते हैं कि वी आर गोइंग टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ इन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान में है, तो वो जो है वो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करवाना चाह रहे होते हैं। सो आप जो हो वो आप सब में ऐसा कुछ भी होना चाहिए कि वो आपको सेलेक्ट करें, ठीक है। सो अ, आप अगर यहाँ पर कोई भी पढ़ रहा है इस स्टेज में, आप जोन से भी फील्ड में, जहाँ से भी फील्ड में हैं, आप में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्वालिटीज़ हैं जो आप अभी जिस स्टेज पे हो, आप उस स्टेज पे हो। सो डिस्कवर दोज़ क्वालिटीज़ एंड रिलेट इट टू योर योरसेल्फ कि आप उसको लीडरशिप में किस तरह डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड थिंग ये है कि आप जो हो वो उस एप्लीकेशन को गो थ्रू करो, उसको समझो कि वो है क्या एंड वो क्यों है। ट्रैवलिंग इज़ नॉट द लाइक हर किसी का एक ड्रीम होता है कि उसने शिकागो जाना है या उसने न्यूयॉर्क जाना है, दिस इज़ एक अलग चीज़ होती है। बट द थर्ड थिंग जो एसओपी में है, तो एसओपी में आपकी ये चीज़ होनी चाहिए कि व्हाट क्वालिटीज़ डिफर यू फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। तो आपको वो सेलेक्ट करें। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे पास एसओपी होती है। I read a lot of SOPs till now। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है, हम लोग एसओपी लिख भी रहे हैं या आप स्टूडेंट एसओपी लिख रहे होते हो, सो एसओपी में ये होता है कि जिस तरह रबिया ने बताया कि 4 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उन्होंने बेसिक 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। द मेन थिंग इज़ कि देखिए, अगर आप अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो या आप किसी को बता रहे हो, अगले बंदे को नहीं पता कि आप कैसे हैं या आप कहाँ से हैं, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आप में क्या क्वालिटीज़ नहीं है, आप में जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या परफेक्ट क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप किसी को बता रहे हो अपने बारे में, तो आप ऐसे बताओ कि उन 250 वर्ड्स में वो आपको समझ जाए कि आप कैसे हो या आप दूसरे से किस तरह डिफर कर रहे हो। तो राइट द एसओपी लाइक अ स्टोरी। अगर आप 4 क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे हो तो वो 4 क्वेश्चंस ऐसे हों कि आप अगले को अपने बारे में एक स्टोरी सुना रहे हो। यू कैन टेक द एग्जांपल कि आप अपने बचपन का फर्स्ट स्टार्ट करो, फिर आप उसको रिलेट करो अपनी फील्ड से, फिर आप उसको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे लेके जाओ एंड देन आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे लेके जाओ व्हाई यू वांट टू गो यूएस, ठीक है। तो आप एसओपी इस तरह लिखो कि आप अगले को एक स्टोरी सुना रहे हो। तो जो एसओपीज़ मैंने अभी तक रीड की हैं, आई रेड द मैंने जो एनालाइज़ किया, अगर आप फर्स्ट पैरा में कुछ लिख रहे हो तो उसका लिंक लास्ट पैरा से नहीं होता। तो अगर आप फर्स्ट पैरा में कुछ लिखते हो, उसका लिंक आप सेकंड में बनाओ, फिर सेकंड का लिंक आप थर्ड पे बनाओ, फिर थर्ड का लिंक आप फोर्थ में बनाओ, और फिर वो फोर्थ जो आप पैराग्राफ कर रहे हो तो वो आपको आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करें। आप अपनी एसओपी में कोई एक वैलिड रीज़न, कोई एक क्वालिटी बताओ सो दैट दे कैन चूज़ ओनली यू, ठीक है। तो आपको डिफर करे दूसरों से। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एसओपी के लिहाज से यही है। बाकी रबिया शेयर्ड टिप्स फॉर द एसओपी। हिरेश, यू कैन शेयर कि मेडिकल स्टूडेंट्स किस तरह से अपनी एसओपी लिख सकते हैं। सो मेडिकल स्टूडेंट्स जो मोस्टली हमारे यहाँ यही होते हैं कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बने, ठीक है। आई एम अ डिप्यूटी
आई एम डूइंग डीपीटी, फिजियोथेरेपी। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग जो हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर को ज़्यादा वो फोकस करते हैं, या आपकी फैमिली का प्रेशर होता है, अम्मी अब्बू ने कहा कि आपने करना ही करना है, या हमारा खुद का बहुत शौक होता है। सो मैंने तो थोड़ी देर पहले ये बात की कि डिस्कवर द क्वालिटीज। तो अगर आप मेडिकल की फील्ड में हो, अगर तो आप में कोई ना कोई एक क्वालिटी लाजमी होगी कि व्हाई यू चूज योर फील्ड। फॉर एग्जांपल, कोई होता है वो बहुत ज़्यादा हम्बल होता है, डाउन टू अर्थ होता है, तो ये एक क्वालिटी है। तो आप अपनी इस क्वालिटी को अगले को किस तरह एक्सप्लेन करोगे, एंड देन यू गो फॉर द पर्सपेक्टिव के आपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है ना। मोस्टली ये होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं, वी ऑल आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, जो जिनके माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों में कोई लाजमी डॉक्टर हो, तो दे एक्सपीरियंस समथिंग इन देयर पास्ट। उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ होता है कि हमारा बच्चा जो है वो मेडिकल की फील्ड में जाए। तो कोई ना कोई वजह होती है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो, आप उस फील्ड में क्यों जा रहे हो। तो ट्राई टू फाइंड वो वजह जिसकी वजह से आप इस फील्ड में हो, ठीक है? फिर उसको कनेक्ट करो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, वन थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन हियर द गोल्स, अबाउट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है? वो आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। एंड गोल्स, आप कौन से शॉर्ट स्टेप्स लेकर अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ जाओगे, दैट्स द गोल। गोल आप जो हो वो प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें करोगे कि आप फ्यूचर के उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। सो दैट्स द डिफरेंस कि आप गोल्स को किस तरह डिफाइन करोगे और आप ऑब्जेक्टिव को किस तरह डिफाइन करोगे। सो अगर आप मेडिकल फील्ड में हो, फॉर एग्जांपल, हमारे मेडिकल सेटअप में बहुत सी कमियां हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के हम लोग हर चीज़ पढ़ते हैं, लाइक देर इज़ डिफरेंट फील्ड्स, फिजियोथेरेपी है, डेंटिस्ट्री है, फिर एमबीबीएस डॉक्टर हैं, फिर इसके अलावा हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट आती हैं, बीएस पैरामेडिक्स वाले आते हैं। सो हर किसी का अपना एक अलग अलग रोल है, लेकिन हम लोगों के सेटअप में क्या है, सिर्फ एक डॉक्टर एमबीबीएस है, सब कुछ वही करेगा। हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि अ, अगर इसको ये पोस्ट देनी है या उसको वो करना है, तो हम वो डिफरेंशिएट नहीं करते। दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ आवर मेडिकल सेटअप। वहाँ पर इस तरह नहीं होता। तो एक ये हो सकता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव और गोल में ये करो कि यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट डिफरेंट फील्ड्स, कि हमारी अगर मेडिकल में है हम, तो हम हर किसी का अलग अलग रोल है। जैसे एग्जांपल आप ये कर सकते हो। सेकेंडली, आप जो हो वो मोस्टली ये है कि गांव साइड में हमारे पास एक हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ डिस्पेंसरीज होती हैं। सो यू कैन ऐड योर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स कि आपने उसको किस तरह ब्रॉड लेकर जाना है, या उसको अपने गांव में या कहीं भी सिटी में सॉरी विलेज में, या अ, इस तरह बैकवर्ड एरियाज में वो किस तरह करना है। तो ये थोड़ी सी एग्जाम्पल है कि आप इस तरह कर सकते हो। इसके अलावा आई डिड वन एसओपी, I think he mentioned about her father illness, disease. Yeah. तो उन्होंने अपने एसओपी में अपने फादर की इलनेस को डिफाइन किया, एंड देन फिर वो उसको लेके गए अपने ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड गोल, एंड देन व्हाई अकॉर्डिंग टू द इलनेस ऑफ हिज और आई थिंक हर फादर, तो वो उसको फिर रिलेट किया कि वो यूएस क्यों जाना चाहती है। सो यू कैन ऐड एनीथिंग। आपकी लाइफ में कुछ भी इवेंट हुआ, आपने उस इवेंट से क्या सीखा, यू कैन ऐड दैट थिंग। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन करना है या कुछ भी। लाइक आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन द पॉइंट इज के वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपकी कैसी है। तो द मेन थिंग इज के वे ऑफ प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, तो रुबिया ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। आई एम गोइंग टू explain about my experiences. Almost we and I and Rabia did all things together. ट्रैवलिंग हमने साथ की, एंड हमने वॉलंटियर वर्क साथ किए। तो इसके अलावा जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, आई गॉट अ चांस टू एज इंटर्नी इन इन सीटो फॉग हॉस्पिटल। मैंने इंटर्नशिप की थी उनके हॉस्पिटल में। तो मैंने वहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखी। हमारे सेटअप में ये होता है कि अगर एक डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को प्रॉपर टाइम नहीं देता,
फॉर एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास पेशेंट आता है तो हम लोग पेशेंट का पूछा आपको क्या बीमारी है, उसके बाद डायरेक्ट मेडिसिन लिख के दी एंड देन पा रहे। लेकिन वहाँ पर ये नहीं होता। अगर आपके पास पेशेंट आता है तो वो प्रॉपर उसका सेशन लेते हैं, 20 to 30 मिनट का सेशन होता है, उसके घर पर बात से पूछते हैं आपको क्या मसला है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, इसके अलावा फैमिली इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, सब कुछ। और उसके बाद वन थिंग आई अगेन आई लर्न फ्रॉम देम कि वो जब अपने वो जब अपने पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू डील कर रहे होते हैं। अगर आप पेशेंट के साथ हम ये पढ़ते हैं कि अगर आप पेशेंट के साथ 60 to 70% पेशेंट का पेन रिलीव हो जाता है अगर आप उससे सिर्फ ठीक तरह से बात करते हो। हम सिर्फ ये पढ़ते हैं एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग्स। तो वो जो पेशेंट को ठीक तरह से डील करते हैं तो पेशेंट का पेन खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे हमारे यहाँ ये ड्रॉबैक है कि हम पेशेंट से बात ही नहीं करते और हम मतलब बस डायरेक्ट मेडिसिन लिख के दें और वो भी फिर ये होता है कि पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि डॉक्टर ने तो मुझसे बात भी नहीं की और मुझे मेडिसिन लिख दी एक्सेट्रा, फिर ये हो जाता है। सो आई लर्न दैट एक्सपीरियंस के हाउ पेशेंटली दे ट्रीट देयर पेशेंट और किस तरह फिर उनके पेशेंट पे उसका इफेक्ट पड़ता है। वन थिंग और इसके अलावा उनका हॉस्पिटल सेटअप मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके अलावा मैंने जो अपने सब्जेक्ट्स लिए थे वहाँ पर उसमें मैंने मेरी प्रोफ़ेसर थी उन्होंने मुझे अपनी रिसर्च में एज़ अ पार्टिसिपेंट लिया था तो मैंने उस पे उनकी रिसर्च में एज़ अ पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट किया था। और फिर मैंने देखा कि वो लोग किस तरह अपनी रिसर्च में फेयर होते हैं। फेयरली वो हर रिसर्च को किस तरह देखते हैं। उनकी रिसर्च थी अबाउट ईईजी ब्रेन केमिस्ट्री को उन्होंने स्टडी करना था क्रिएटिनिन का इफेक्ट ब्रेन पे। तो वो किस तरह करते हैं दैट वाज़ द एक्सपीरियंस। वो बहुत ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस था कि हमारे सेटअप में ये भी लेख है कि हम लोग रिसर्च में आगे नहीं हैं लेकिन वो रिसर्च में किस तरह आगे हैं। सो आई एक्सपीरियंस्ड दैट थिंग्स। सो और एक और इसके अलावा ये है कि मेडिकल के स्टूडेंट से पूछते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ना। मोस्टली ये होता है कि अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो आपका सेमेस्टर जाता है जो आप सेमेस्टर छोड़ के जाते हो। तो या और अगर आपका ईयरली है तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ईयर वेस्ट होता है। वो डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पे। तो ये पूछते हैं कि हमारा टाइम तो नहीं वेस्ट होगा। तो आई एम आई सजेस्ट कि जब आप वहाँ पे चले जाते हो एंड जो चीज़ें आप वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हो उसके बाद वापस आके आप कभी भी रिग्रेट नहीं करते कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। सो वन थिंग इज दिस। और डू अप्लाई सब अप्लाई करें। ये नहीं कि आप अगर कहीं से भी हैं या आपको इंग्लिश नहीं आती है आप गरीब हैं या आप अमीर हैं या आप मिडिल क्लास से हैं या आप कहीं से भी हैं। वहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया में वो लोग किसी भी चीज़ को पॉइंट पे नहीं रखते कि अगर ये वाला बच्चा ऐसे है या ये ऐसे है या वो अमीर है या वो ये है या उसकी बेस्ट इंग्लिश है या वटेवर जो भी। तो वो कभी भी किसी बच्चे को इस बेस पे सेलेक्ट नहीं करते। सो अप्लाई सब करो। थिंक कि आप मेहनत करो एसओपी पे वो अलग चीज़ है एंड देन डिपेंड लाइक ऑन अल्लाह। अल्लाह पाक ने अगर किया या आपका रिस्क हुआ तो डेफिनेटली यू विल गो। तो अप्लाई करो। सब अप्लाई करो आई विल सजेस्ट। एंड बाकी चीज़ें फिर अल्लाह पे छोड़ देते हैं। अगर अल्लाह ने किया तो इंशाल्लाह दिस एक्सपीरियंस यू विल नेवर रिग्रेट। लास्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है ये। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। I want to add one thing for medical students. Second, first तो ये कि medical students especially are not allowed to practice there. वहाँ जाके आप लोग MBBS में, DPD में, BDS में, किसी भी इस तरह की medical field में you cannot get enrolled directly. वहाँ पे this is not allowed. Hira did an internship in the hospital, so that was a plus point for her. But she was not allowed to deal patients directly. She go there, वो observe करती थी, different चीजें देखती थी, but still she was not allowed कि वो मतलब उस तरह practice कर सके. So what I want to recommend all medical students here क्योंकि APSU में काफ़ी ज़्यादा medical volunteers हैं जिनका APSU की वजह से काफ़ी ज़्यादा volunteer experience बना है। काफ़ी लोग participate करते हैं medical camps में different चीज़ों में even if you are participating online if you are sharing your posts their posts
और आप उनको डोनेशन इकट्ठी करके दे रहे हैं या सिर्फ आप उनके डोनेशन के मैसेजेस शेयर कर रहे हैं, यू आर सम हाउ कॉन्ट्रीब्यूटिंग, आपका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। सो व्हाट आई रिकमेंड एवरीवन इज जितने भी APSU के मेंबर्स हैं, एक तो वो APSU से अपना वॉलंटियर सर्टिफिकेट लें और उसको एप्लीकेशन में जरूर अपलोड करें। सेकेंडली आई वाज टेलिंग अबाउट मेडिकल स्टूडेंट्स की, क्योंकि आप लोग वहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स में डायरेक्टली एनरोल नहीं होते, आप लोग सम हाउ रिलेटेड सब्जेक्ट्स अपनी फील्ड से पढ़ते हैं, बट आपको मतलब डायरेक्ट MBBS या BDS की डिग्रीज में एनरोल नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस ऑफ द प्रोग्राम। तो आप लोग की SOPs के लिए व्हाट आई सजेस्ट इज कि उसमें ये मत मेंशन करें कि यू वांट टू गो देयर एंड यू वांट टू विजिट, कि वहाँ पे मेडिकल किस तरह प्रोसीड कर रहा है, मतलब सिर्फ मेडिकल से स्टिक मत रखें अपनी SOP को कि आप वहाँ पे डॉक्टर्स किस तरह डील करते हैं या आप वहाँ पे ओवरऑल मेडिकल का क्या स्कोप है और आप लोग वापस आके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज देर इज अ चांस कि आप लोग वहाँ पे इवन किसी एक भी डॉक्टर से ना मिल सकें, इवन तो आपका ये एम हो सकता है कि आप वहाँ जाके एज ए मेडिकल स्टूडेंट किसी हॉस्पिटल में काम करें या उनके डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करें, बट स्टिल देयर इज अ चांस कि आपको ये मौका ही ना मिले कि आप किसी डॉक्टर से डील कर सकें इस तरह, क्योंकि अब इस तरह अलाउड नहीं है। तो व्हाट आई रिकमेंड ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स कि अपनी SOP में इस चीज के अलावा कुछ लिखे, अगर आपको वॉलंटियर काम कर रहे हैं अपना कोई डिफरेंट एम लिखें, आप लोग रिसर्च पे लिख सकते हैं कि आप लोग वहाँ की मेडिकल रिसर्च देखना चाहते हैं, हॉस्पिटल सिस्टम या कुछ भी, एनीथिंग, बट जस्ट डोंट स्टिक कि आप लोग वहां जाके मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ के ही देख सकते हैं कि हम आप वापस पाकिस्तान में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो दैट वाज वन थिंग फॉर ओनली मेडिकल स्टूडेंट्स। उसके अलावा SOPs के डूज एंड डोंट्स बहुत ज्यादा कमेंट्स में आप लोग पूछ रहे हो, तो उसके लिए आई हैव फ्यू रिकमेंडेशंस। एक तो ये कि वर्ड लिमिट का मत सोचें, अगर आप लोग अभी तक अपना पहला ड्राफ्ट बना रहे हैं, ऑल्दो वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट, लेकिन अगर आप लोग अपने पहले ड्राफ्ट पे हैं तो वर्ड लिमिट को माइंड से निकाल दें, जस्ट स्टार्टिंग राइट अवे अकॉर्डिंग टू द 4 आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ द SOP, उसके हिसाब से लिखना शुरू करें। देन अगेन उसको फिर देखिए उसमें अननेसेसरी क्या है, कौन सी चीज कम इम्पोर्टेंट है, आप उसको कैसे निकाल सकते हो, आप कैसे डिफरेंट सेंटेंसेस को कंबाइन करके शॉर्ट SOP अपनी सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं इसमें ऐड करूंगी रिगार्डिंग वोकेबलरी एंड ग्रामर। बहुत ज्यादा हाई लेवल वोकेबलरी या ग्रामर यूज करने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, माय SOP वाज रिटन वेरी सिंपली। मैंने हिरा की SOP पढ़ी है, हिरा's SOP वाज रिटन वेरी सिंपली। मैंने डिफरेंट सिलेक्टेड एलमनाई हमारे जो हैं यूग्रेड के, उनकी SOPs पढ़ी हैं। दे वर वेरी सिंपली रिटन, मतलब वर्ड वर्ड इन रियल उन्होंने वही अपनी SOP में लिखा हुआ है, उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बिकॉज यूग्रेड इज नॉट लुकिंग फॉर परफेक्शन। वो नहीं देखेंगे कि अगर आपने बहुत हाई लैंग्वेज इंग्लिश इस्तेमाल की हुई है, अगर आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। नो, दैट्स नॉट द केस। तो ट्राई करिए कि सिंपल इंग्लिश ही लिखें, लेकिन वो मीनिंगफुल हो, मतलब आप लोग कुछ मीनिंगफुल लिख रहे हो उसमें। सेकंड ये कि अपनी SOP के सारे पॉइंट्स कनेक्ट करने की कोशिश करें। इससे अच्छी SOP नहीं हो सकती अगर आपने अपनी करंट फील्ड ऑफ स्टडी से ही रिलेटेड कोई फ्यूचर एम लिखा हुआ है और वही आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव बन रहा है, तो इससे बेटर SOP आई डोंट थिंक सो कि कोई हो सकती है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो मत ऐड करें। अच्छा, SOP का स्टार्ट बहुत आई रिकमेंड कि अच्छा होना चाहिए। मैंने जो आर्टिकल शेयर किया है APSU टीम के साथ, उस आर्टिकल में मैंने अपनी SOP का इनिशियल फ्रेज लिखा हुआ है, तो आप लोग वो पढ़ के, मैंने उसमें सारी स्टोरी बताई है कि मैंने बेसिकली लिखा क्या था, फिर मैंने उसको कैसे रिफाइन करके उस शेप में मैं लेके आई। तो वो आप लोगों को पढ़ के आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे हैं वी कैन शेयर देयर आवर SOP विद यू, सो वी डोंट शेयर अवर SOP बेसिकली, और कोई भी एलमनाई रिकमेंड नहीं करता है कि आप उसकी SOP पढ़ो या आप एलमनाइज की SOPs देखो। द रीजन इज क्योंकि जब आप किसी की SOP पढ़ लेते हो, स्पेशली अगर वो एक सिलेक्टेड SOP है, तो देयर इज एन इमेज इन योर माइंड बन जाता है कि देयर इज व्हाट योर फाइनल प्रोडक्ट शुड बी, मतलब आपकी SOP भी ऐसे ही साउंड करे, ऐसे ही लिखी हुई हो, इसी फ्लो में जाए, बट वो SOP आप पे अप्लाई नहीं हो सकती बिकॉज दैट्स द स्टोरी ऑफ एन अदर पर्सन। तो पीपल डोंट ब्रेनस्टॉर्म, फिर वो उससे ज्यादा उससे हट के नहीं सोचते, वो उसी स्टाइल में उसी तरह से लिखने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी डोंट शेयर अवर SOPs, बट वी रिव्यू अवर SOPs। तो आई प्रोवाइड विद माई ईमेल, आई ऑल्सो प्रोवाइडेड विद माई Instagram blog, आप लोग मुझे वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई एम रिव्यूइंग SOPs nowadays, even though टाइम बहुत कम रह गया एंड वी हैव a lot of SOPs in queue, तो वी आर रिव्यूइंग ओनली those SOPs जो 250 वर्ड्स में और जो फाइनल ड्राफ्ट्स हैं, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि हम एक एक SOP को रिव्यू करके उसमें बार बार उसको डिस्कस करें। तो ट्राई टू सबमिट योर फाइनल SOP। अगर आप लोगों ने मुझसे रिव्यू करवानी है, आई प्रोवाइड माई ईमेल एंड Instagram टिल 17th of September, क्योंकि 21st इज द लास्ट डेट, और रिव्यू करके रिप्लाई करने में भी इट टेक्स टाइम।
तो आप लोग अपनी SOPs शेयर कर सकते हैं, वी कैन गिव यू अ रिव्यू, बट वी कैन नॉट शेयर आवर SOPs विद यू। देयर इज अ क्वेश्चन, यहाँ पे मैं इसको अभी तक मैंने किसी भी सेशन में ये एड्रेस नहीं किया, बट आई वांटेड टू एड्रेस दिस, और यहाँ पे किसी ने पूछा भी है, स्पेशली फ्रॉम हिरा, कि शेयर योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग निकाब एंड हिजाब। सो पहले मैं बता देती हूँ, फिर आई रिक्वेस्ट हिरा। आई एम अ पर्सन जो कि पाकिस्तान में इतनी फ्रिक्वेंटली या इस तरह से मैंने हिजाब कंटिन्यू नहीं किया हुआ था, बट व्हेन आई वेंट टू द US, मैं वहाँ पे हिजाब लेती थी। हिरा वाज आल्सो माय मोटिवेशन देयर, क्योंकि हम हर टाइम ऑलमोस्ट साथ होते थे। तो हिरा को देख के मुझे ज्यादा मोटिवेशन आती थी, बिकॉज हिरा निकाब भी करती हैं। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे देखें, इवन दो अगर आप पाकिस्तान में भी हो, यू हैव गुड एंड बैड पीपल हर टाइम आपके पास। आपके सर्कल में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई भी आपकी ड्रेसिंग पे कमेंट नहीं करता, या अगर आप हिजाब कर लेते हैं तो आप कमेंट्स से बच जाते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आपकी तरफ नहीं आते, या कोई इस तरह की नेगेटिव परसेप्शंस आपको सुनने को नहीं मिलती। होता है, इवन पाकिस्तान में ज्यादा होता है। US इज अ कंट्री जहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस और ड्रेसिंग पे लीस्ट कमेंटिंग की जाती है, ठीक है। बट देखिए, देयर इज अ केस, जैसे हम पाकिस्तान में हैं, हमारे पाकिस्तान में कितने ज्यादा चाइनीज हैं फॉर एग्जांपल, इवन दो देयर आर लॉट ऑफ चाइनीज, इस्लामाबाद में, स्पेशली in इस्लामाबाद, इट्स वेरी कॉमन। लेकिन स्टिल मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि अगर कोई चाइनीज गुजर रहा है एक पाकिस्तानी क्राउड के बीच में से, तो लोग उसको देखेंगे, दे विल सी देम, इवन दो कमेंट पास नहीं करेंगे, लेकिन एक दफा देखेंगे जरूर, बिकॉज दे आर डिफरेंट एंड इट्स लाइक समथिंग नेचुरल, आई कैन से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि ये एक नेचुरल चीज है कि अगर आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है, तो आप एक दफा उसको देखोगे जरूर, अगर आप कुछ कह नहीं रहे, बट इट टेक्स योर अट्रैक्शन, ठीक है, मतलब आपका एक दफा माइंड उस तरफ जाता है। तो सेम फॉर द US, वहां भी लोग रहते हैं, वहां भी इंसान रहते हैं, इवन दो दे डू इट वेरी लेस। हेरा को आई थिंक थोड़ी ज्यादा हेजिटेशन रही शुरू में बिकॉज ऑफ निकाब, क्योंकि ये चीज उनके लिए न्यू थी। हमारे कैंपस में देयर वाज ओनली, आई हैव सीन ओनली वन गर्ल अदर देन हेरा, शी वाज आल्सो पाकिस्तानी, शी वाज अ फुल ब्राइटर, शी इज स्टिल इन दैट कैंपस। सिर्फ वो निकाब करती थी, एंड आई हैव सीन हेरा द सेकंड वन। तो उनके लिए ये चीज न्यू थी बिल्कुल, तो वो देखते थे, लाइक शुरू में हीरा को भी हेजिटेशन रही, बट देन दे स्टार्टेड आस्किंग, उन्होंने पूछना शुरू किया कि आप लोग ये क्यों करते हैं। देन यू कैन इजीली टेल देम आपके जो भी रीजंस हैं, वेदर यू रिलीजियस, पर्सनल, एनीथिंग। और उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप उनको एक दफा बता दो, अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन कर लिया, अगर आप उनको बता दो कि हमारी ये रीजंस हैं, दैट्स व्हाई वी डू दिस, why we cover our hair या our head or anything, तो उसके बाद यू फील कंफर्टेबल, और उनकी तरफ से भी क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, वो नोटिस करना कम कर देते हैं, बिकॉज आई हैव सीन पीपल वहां पर कि वो बहुत अपने काम से काम रखेंगे, अगर कोई चीज बॉदर कर भी रही है तो एक दफा आपसे पूछ के दिल एंडेड अप देयर। तो मेरा एक्सपीरियंस रिलेटेड टू हिजाब बहुत अच्छा रहा है, आई वुड से दैट। इवन वहां पे मुझे ज्यादा लोगों ने इनकरेज किया कि यू लुक ब्यूटीफुल इन एंड योर स्कार्फ इज रियली ब्यूटीफुल, योर प्रिंट इज रियली ब्यूटीफुल। तो उससे आपको मैंने वहां पे कभी भी हेजिटेट फील नहीं किया, इवन यू फील प्राउड जब आप जाते हो, ऑब्वियसली इट्स आवर कल्चर, इट्स आवर रिलीजन, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक हिरा वांट टू ऐड समथिंग इन दिस। और इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मैं अप्लाई करी थी तो वहां पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, दे हैव दिस कंसर्न कि हम तो हिजाब करते हैं, वी डू निकाब, तो हमें तो मे बी सिलेक्शन, हमारा चांसेस कम हो या हम सिलेक्ट ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ। अगर आप हिजाब करते हो या आप निकाब करते हो, इट्स योर पर्सनल थिंग, और इस पे आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आई डोंट थिंक सो कभी फेस करनी पड़ेगी, स्पेशली इन यूक्रेट। Thank you, Hera. And तो आई होप मोस्टली सबकी क्यूरीज जो हैं वो एड्रेस हो गई हों, और मोस्टली जो क्वेश्चन हमारे पास यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आ रहे थे वो भी आप दोनों ने ही आंसर कर दिए हैं। सो थैंक्स फॉर योर टाइम और अल्लाह हाफिज। बाकी अगर किसी को क्यूरी हो तो दे कैन जॉइन APSU एंड ड्रॉप देयर क्यूरीज वहाँ पे। सो अल्लाह हाफिज, हम वाइंड अप करते हैं अपने सेशन।